So, hello everyone. What a day it was. What a day. As we are done and dusted with the UPSC Prelims 2025, lot of things are going in the air. There are a lot of noise, lot of discussions, first reaction, second reaction, final reaction, what not. So, we restrained. We did not post anything in between your GS paper 1 and GS paper 2 because we knew कि this is the most difficult time for you and अगर इस समय हम कुछ भी पोस्ट करते हैं तो इट विल अफेक्ट यू. अगर किसी तरह से सर्कुलेशन में आप तक वो चलता है, वीडियो पहुंचता है, तो डेफिनेटली यू विल गेट हुक्ड इन एंड वो क्यूरियोसिटी रहती है. सो वी रिस्ट्रेंड. नाउ कमिंग बैक कि analysis of the paper, whether it was moderate, whether it was easy as a lot of people are saying, whether it was moderate or it was hard, or what would be the cutoff. So now we will analyze the static and the dynamic part of the your paper. When it come to static part में हम देखेंगे polity, economy, modern history and geography. When you see polity, there is a slump in the question. 19 से 14 हुए हैं, but the questions are hard hitting. When I say hard hitting means the questions are checking your conceptual clarity. कोई भी question fact basis पे नहीं आया है. And whenever UPSC checks your conceptual clarity, it hits hard. What does it mean? Means कि it takes everything from you. For example, while checking the conceptual clarity, UPSC ने पूछा है कि pardoning power of the president is subject to limited judicial review. अब जिन्होंने detailed knowledge आपकी चेक हो रही है, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, आपको लगा कि जुडिशियल रिव्यू को ही लिमिट कर दिया, स्टेटमेंट गलत है. बट इफ़ यू रीड योर टेक्स्ट बुक लक्ष्मीकांत, एंड अगेन लक्ष्मीकांत इज एवरग्रीन, आपको बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बट जो है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है. तो आप पाएंगे कि द ग्राउंड्स ऑन विच द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी क्वेश्चन इज डिफाइंड एंड वन ऑफ द ग्राउंड इज मॉडिफाइड. एंड जब भी ग्राउंड डिफाइंड है तो आप किसी चीज़ को जब डिफाइन कर रहे हैं देन आप उसको लिमिट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्वेश्चन पार्डनिंग पावर, प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर को क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं, यू हैव टू मेंशन द ग्राउंड ऑन विच यू आर क्वेश्चनिंग. आप ओपन एंडेड नहीं जा सकते हैं कि मुझे एक ख्याल आया एंड मैं आ गया. इट वॉन्ट हैपन. यू हैव टू मेंशन द ग्राउंड. एंड सेकेंडली, द ग्राउंड जिस पे डिफाइंड है, 3 या 4 ग्राउंड है, माला फिडे, परवर्स, इन्हीं पर ही जुडिशरी चेक करेगी पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, किसी और ग्राउंड पे चेक नहीं करेगी. तो द पार्डनिंग पावर इज लिमिटेड, बट ये लिमिटेड एग्जैक्ट वर्ड नहीं है. सो दे आर चेक, वर्ड मेंशन नहीं है आपके बुक में. सो यूपीएससी इज हिटिंग हार्ड बाय चेकिंग योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी. एंड ये क्वेश्चंस वही एस्पिरेंट्स कर पाए होंगे जिन्होंने डिटेल्ड नॉलेज एंड इम्पॉर्टेंट एरियाज पे फोकस किया होगा, जो लास्ट में रफली उन्होंने पेज पलट दिए होंगे. एंड किसी क्रैश कोर्स से आप पॉलिटी नहीं कर सकते. सेम गोज फॉर इकोनॉमी. all questions are concept based, fundamental formula and concept based. When it comes to modern history में there is a good surprise, and surprise was के questions बड़े हैं. पॉलिटी में जो questions slump हुए हैं वो modern history से उसको balance कर लिया गया है. So there were 8 questions. आप आराम से 5 स्पेक्ट्रम का 1 रीडिंग से आप बना सकते हैं. पीछे भी रामास्वामी अय्यर से भी सवाल आया है, बताया था टेबल पढ़ के जाना है. When it comes to geography, there is a conceptual question. And conceptual question को भी इन्होंने और tricky बना दिया by framing those questions in form of assertion and reason. Statement 1, statement 2, statement 3 and options like that. So when it comes to a static part, the static part was checking your conceptual clarity. And whenever UPSC is checking your conceptual clarity, it will hit you hard. And this time UPSC was hard. So static, difficult. Now come to dynamic part. When it comes to dynamic part, we'll cover IR, science, tech, environment and current affairs. In IR we saw good number of increase. 7 क्वेश्चन आए हैं. साइंस, टेक एंड इन्वायरमेंट मोर और लेस वर सेम. करेंट अफेयर्स से मोर और लेस सेम आए हैं. IR से आपको देखने को मिलता है. बट क्वेश्चंस कैसे थे? फैक्चुअल, मल्टीपल फैक्चुअल क्वेश्चंस. No one remembers the member countries of NATO. एक आध क्वेश्चन सही है. अगेन साइंस इन्वायरमेंट की बात करें
तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का आर्टिकल 6 एंड वो भी स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 असर्शन रीजन, वेरी डिफिकल्ट। साइंस टेक में आप रख सकते हैं, डिफेंस से बहुत सवाल थे बट देवर अगेन बहुत फैक्चुअल नेचर के सवाल थे, बहुत फैक्चुअल। सो अगेन आईआर, आप बिम्स्टेक का सवाल उठाकर देख लीजिए, आप कितना इम्फेसिस करते हैं एज अ बिम्स्टेक, एज अ ऑर्गेनाइजेशन आप कितना जानेंगे, राइट? सो आईआर, यस देयर क्वेश्चंस तो डायनामिक पार्ट से भी हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, बट दे आर फैक्चुअल, डिफिकल्ट टू रिमेंबर एंड हेंस दे आर ट्रिकी। एंड सिर्फ फैक्चुअल नहीं है, फैक्चुअली के साथ साथ स्टेटमेंट, एजर्शन रीजन, एजर्शन रीजन। सो डिफिकल्टी फैक्ट्स प्लस इस तरह की जो जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो इट मेक्स डिफिकल्ट। यानी नटसेल, योर स्टैटिक पार्ट इज डिफिकल्ट and your dynamic part is also difficult in my opinion. I sitting here, I cannot declare कि paper was very easy, I cannot say. and अगर मैं ऐसा कहती हूँ तो मैं उन सारे एस्पिरेंट्स को जो उन्होंने मेहनत की होगी उनको मैं पैनिक में डालती हूँ, दैट आई वॉन्ट डू। सो पेपर वॉज डिफिकल्ट एंड इट वॉज डिफिकल्ट दैन द लास्ट ईयर 2024 के कंपेरिजन में। इन माई आइज पेपर इज डिफिकल्ट। सो what would be the cutoff? In my opinion, the cutoff would be something around 82 to 86. 82 to 86। देखिए, कहने के लिए तो लोगों ने बहुत अटेम्प्ट कर दिया है, बहुत कुछ कर दिया है, बट एक बार वो मिलाएंगे और एक बार थोड़ी सी डस्ट सेटल होगी तो लोगों का ओपिनियन अपने आप कमता जाएगा। सो समथिंग, एनीथिंग 80 प्लस यू आर जनरल, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। कट ऑफ और भी नीचे जा सकता है बट हम उसको प्रोडिक्ट नहीं करेंगे, लेट यूपीएससी कम एंड रिजल्ट दे। बट इफ़ यू आर एनीथिंग 82 to 86 वुड बी कट ऑफ, ये हमारा प्रोडिक्शन है। आप 80 के अराउंड भी या 76 से 78 जो भी है, आप 1-2 दिन का गैप लीजिए एंड प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एंड अगेन दिस 82 to 86 वुड डिपेंड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ सी सेट, कि हाउ यू फेयर्ड इन द सी सेट। कंप्रीहेंशन में सवाल बढ़े, नंबर ऑफ क्वेश्चन 26 से 29 हुए हैं, बाकी मोर और लेस जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमिलर रहा है। सो this 82 to 86 is subject to the performance of the students in paper 2 and ये धीरे धीरे और एक बार सेटल होगा। बट फर्स्ट इम्प्रेशन में पेपर वाज डिफिकल्ट एंड 82 to 86। आप ये नहीं कह सकते कि एक आध क्वेश्चन एंशिएंट मेडिवल से डायरेक्ट आ गया है, हिस्ट्री से 6 सवाल बनने लायक है, इसका मतलब है कि पेपर ईजी है। पेपर इज डिफिकल्ट। व्हेनेवर यूपीएससी इज चेकिंग योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, इट विल हिट हार्ड एंड इस बार भी उन्होंने हिट हार्ड किया है। सो ओवरऑल द पेपर इज डिफिकल्ट। 82 to 86 वुड बी कट ऑफ समवेयर अराउंड। बाकी एज द डस्ट सेटल्स वी विल सी 2026 के एस्पिरेंट्स इस पेपर से क्या टेक अवे ले सकते हैं एंड हाउ वुड दे नीड टू प्रिपेयर, ये हम कल के ओरिएंटेशन 2026 में देखेंगे। 2025 एस्पिरेंट्स, टेक अ ब्रेक, टेक अ रेस्ट, टेक अ चिलपिल, थोड़ा सा चिलपिल हो जाइए एंड वी विल टॉक टू यू फर्दर। थैंक यू वेरी मच।